ایک پہلے یہاں بھی ایک قائد تھے، ایک لیڈر تھے جو ایک اشارے پہ پورا سندھ بند ہوتا تھا، وہ بھی مظلومی کی آواز کے بن کے آئے تھے. کیا آپ لوگ بھی اسی طریقے سے تو نہیں آئیں گے؟ ایک لیاری گینگوار فیملی سے آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے اور لیاری گینگوار نے آپ باقاعدہ آپ کی پارٹی میں شمولیت کی. جتنا بھی ان کے پاس بلیک پیسہ وہ وائٹ کر رہے ہیں. دیکھیں لوگ تو تنقید ہی کرتے ہیں. آج آپ نے کتنے پیسے لیے ان کا یہ عہدہ قبول کرنے میں؟ السلام علیکم. وا پاکستان ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سعید خان. ناظرین، پاکستان میں سیاسی پارٹیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. جو بھی بندہ آپ دیکھتے ہیں وہ اپنی سیاسی پارٹی بنا لیتے ہیں، بھلے وہ پہلے تحریک چلا رہا ہو، بعد میں فوراً وہ سیاسی پارٹی بنا دیتے ہیں، یا وہ این جی او چلا رہا ہو، بعد میں سیاسی پارٹی بناتے ہیں. ایسی ایک سیاسی پارٹی نے کراچی میں دھوم مچا دی جس کا نام ہے مظلوم عوامی تحریک پاکستان. جن کے چیئرمین ہے حاجی محترم صادق خان اتوزئی صاحب. یہ پچھلے 1-2 مہینے سے کراچی میں موجود ہے، جگہ جگہ کارنر میٹنگ کر رہے ہیں اور ساتھ میں دڑا دڑ لوگ بھی شمولیت کے اعلانات بھی کر رہے ہیں. تو آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہے چیف آرگنائزر صوبہ سندھ آغا ایڈوکیٹ آغا اسد بابر صاحب. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا. آپ نے بھی یہ پارٹی جوائن کی اور آپ چیف آرگنائزر بنے صوبہ سندھ کے. تو یہ سب سے پہلے یہ کیسے مجانا ہو گیا ہے؟ کیا آپ نے کیا ایسی جادو کر دی کہ ایک دم جو ہے صوبہ سندھ پہ مسلط ہو گیا؟ بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کے چینل کا بھی. میں اپنا پہلے تعارف کراؤں. میرا تعلق جو ہے ڈسٹرکٹ شکارپور سے ہے اور وہاں پہ علاقہ ہے قلعہ نواب خان. ہم لوگ تقریباً 300 سال سے وہاں پہ آباد ہیں. اور میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ لینڈ لارڈ فیملی سے ہے. شروع سے ہماری فیملی لینڈ لارڈ رہی ہے. 2013 میں صوبائی سیٹ سے الیکشن لڑا تھا PS 11 سے شکارپور سے. اسٹوڈنٹ لائف سے میں زیادہ ایکٹیو رہا ہوں. اسٹوڈنٹ کی جو یونینس وغیرہ بنی تھی وہاں پہ لاء کالج کے ٹائم پہ، اس میں میرا بہت اچھا رول رہا ہے، پازیٹیو رول رہا ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے. تو میرا ایک فیس ویلیو آلریڈی بنا ہوا تھا سوشل اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کے تحت. تو میری جب حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جب اپنا ویژن مجھے بتایا تو اللہ پاک نے تو ہمیں بھی سمجھ دی ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے. تو ہم نے یہی بیسٹ سمجھا کہ ہم موروثی سیاست سے نکل کے اور نئے چہرے کو جو ہے اپنائیں اور ہم اس کا ساتھ دیں. کیونکہ حاجی صاحب جو ویژن لے کے آیا ہوا ہے پاکستان میں، خاص طور پہ ابھی سندھ میں ہماری تنظیم سازی چل رہی ہے، تو اس ویژن کو آگے بڑھانا پازیٹیو وے میں، وہ جو حاجی صاحب کی ٹیم ہے جیسے اس کا میں بھی ایک ادنا سا حصہ ہوں، تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس پوائنٹ آف ویو کو، اس وے کو کس بہاف پہ ہم آگے لے کے جا رہے ہیں پازیٹیو وے میں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو موروثی ایک سیاست ہے تو اس کو عام پبلک کے مسئلوں کا پتہ نہیں ہے اتنا. ہم اور آپ، ہمیں عام پبلک کے مسئلوں کا بھی پتہ ہے. ہم ان کے ساتھ ایزی اپروچ میں بھی آ جاتے ہیں، ایزی کانٹیکٹ میں بھی آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں بغیر کسی سیاسی پلیٹ فارم یا بغیر کسی قومیت کے یا بغیر کسی رنگ و نسل کے. کوئی بھی قوم ہوتی ہے، ہم تو شروع سے آپ کو پتہ ہوگا اندرون سندھ میں میرے بلڈ بینک کافی سالوں سے چلے ہیں. تو وہ بلڈ بینک جو ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے تھے ہر قوم کے لیے تھا، وہ ابھی بھی ہے. اللہ پاک سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم وہ کام کر سکیں جو انسان ذات کی بہتری کے لیے ہو. اچھا، آپ یہ بھی بتائیے گا کہ 17 تاریخ پچھلے مہینے 17 تاریخ کو آپ لوگوں نے ایک جلسے کا اعلان کیا تھا جس میں بہت بڑی تعداد لوگوں نے جو ہے شرکت بھی کی تقریباً، لیکن پولیس آئی، لاٹھی چارج ہوا، آپ کے سامان اکھاڑ پھینک دیا. ان کی اصل وجہ کیا ہے؟ آپ کو
इजाजत क्यों नहीं दी? हाँ देखिए, डीसी साहब को हमने लेटर दिया था परमिशन के लिए। डीसीओ साहब ने ऑब्जेक्ट उस पर कोई भी नहीं लगाया। उन्होंने ओपिनियन के लिए भेजा पुलिस डिपार्टमेंट को, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पुलिस के हाथ में होता है, डीसी साहब के हाथ में नहीं होता। तो पुलिस, आपको पता है शुरू से हमारी पुलिसिंग जो है वो पोलिटिसाइज रही है। तो आपका ये सवाल बड़ा मासूमाना भी है। और जब पोलिटिसाइज पुलिस हो, यही एसएसपी हो और यही डीआईजी हो और यही मतलब अफसर हों, तो वो लाजमी थोड़े थोड़े सुनते हैं। अभी लाजमी पुराने चेहरे जो यहाँ पे मुसल्लत रहे हैं, उनको तो तकलीफ़ होगी कि अचानक एक बंदा आया है, एक टीम आई है और इतना बड़ा क्राउड, क्योंकि क्राउड वहाँ जाता है जहाँ उसको पता होता है कि मेरी बेहतरी है और मेरे लिए कुछ नया कुछ कर सकेंगे ये लोग। अच्छा, उसमें आप लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी और हाजी साहब के छोटे भाई हाजी सैलाब खान भी थे। तो फिर आप लोग एक 1.5 घंटे के बाद एक रैली की शक्ल में थाने से बाहर आ गए, क्या? असल में मुझे और हाजी सैलाब को बुलाया गया था। हम लोग गए थे थाने पे। इरफान बहादुर साहब राब्ते में था हमसे, एसएसपी जो है वहाँ के ईस्ट के। उनसे भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, पर बोलते हैं मजबूर हैं। अच्छा। तो मजबूर जब बंदा होता है तो उससे तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं है, मिसाल के तौर पे। अच्छा, कई सवालात उठते हैं कि आपको इसलिए इजाजत नहीं दी कि आपके जो चेयरमैन है वो स्मगलर है, वो चालिया सप्लाई करता है, वो मतलब गैर कानूनी काम में मुलविस है। बलूचिस्तान के चमन बॉर्डर से लेकर पूरे पाकिस्तान में उनकी गाड़ियां चलती, कोई उनको हाथ देने तक जो है उनको गवारा नहीं होता, उनको हाथ नहीं दे सकते। इसमें कितनी सदाकत है? देखें, सिंगुलर का जो लफ्ज़ लगता है, एक जगह चलो आप ये अल्फाज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो मुखालिफ किरदार कुशी करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा माजी में बहुत सारे सियासी जमातों के लीडरों के ऊपर कब्ज़ा माफिया का इल्ज़ाम लगा, कातलों का इल्ज़ाम लगा, अगवाकारों का इल्ज़ाम लगा, बोरीबंद लाशों का इल्ज़ाम लगा। तो ये इल्ज़ाम लगते रहते हैं। बाकी हाजी जो है वो ख़ुद बिजनेसमैन है, सबको पता है। और उसका जो ये फूड आइटम वगैरह आते हैं, तकरीबन उससे आपको मैं अंदाज़ा से बताऊं, तकरीबन 50,000 ख़ानदान की वहाँ से रोज़ी होती है हाजी के बिज़नेस से। बाकी हाजी ना कभी हाजी ने कोई मंशात का किसी से कोई डील किया है, या हाजी का कभी कोई ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई हथियारों का ऐसी चीज़ें जिससे इंसानियत का नुकसान हो, जिससे हमारे मुल्क का नुकसान हो। बाकी ये फूड आइटम वगैरह आते हैं। वैसे आपके एक दफ़ा उसमें मेरे सामने उनके अल्फाज थी कि जो गलत काम करेगा उनको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो जब तारिक रोड पे जब वो आते जाते हैं, वो एक ड्रोन की तरह आगे पीछे गाड़ियाँ होती हैं, उनके जो है यूनिफॉर्म में उनके मुसल्लह अफराद भी उनके साथ शामिल होते हैं और वो खाली शीशो गाड़ियों में घूमते हैं, लोगों में इनके मतलब एक खौफ फैल जाता है। तो ये डॉन है या सियासी बंदा असल है? में लोगों में खौफ होता तो डेली के बुनियाद पे 5-6 हज़ार लोग नहीं आते मिलने और ख़ास तौर पे फ़ोटो निकलवाने और वीडियो बनाने। ये चेयरमैन साहब के पास आते हैं? बिल्कुल, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। बाकी उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो वहाँ पे आपको पता है कि कितनी दुश्मनियाँ होती हैं। कारोबारी बंदे को, साफ़ सुथरे बंदे को कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, और तनकीद भी उसके ऊपर ही होती है जो काम करता है। अगर घर बैठ जाएगा तो तनकीद नहीं होगी। बाकी प्रोटोकॉल हाजी अगर उठाता है तो बहुत सारे सियासी जमातों के लोग सरकारी प्रोटोकॉल उठाते हैं, पुलिस की मोबाइलें यूज़ करते हैं, हालांकि उनको कोई सियासी ओहदा नहीं होता। इनके पास अपनी बलूचिस्तान लीवीज़ की है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, पाकिस्तान लेवल का बिजनेसमैन है और काफ़ी बार वो अवार्ड जीत चुके हैं बिजनेस के हवाले से। तो यही चीज़ें लोग मोहब्बत करते हैं अच्छा, सिर्फ। हमें ये भी कई ज़राए ने कहा है कि आपके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर था जब आप उनके मिलने गए, तो आपको बाकायदा ऑफर हुई थी कि आप वहाँ ना जाए, आप हमारे पास आ जाए। ऐसे इसमें कोई सदाकत है? जो पक्ष ये कराची में जो मजबूत पार्टी है, जो आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे। मुझे देखें, काम जो करता है मुखलिस आदमी हो और कमिटेड आदमी हो, उसकी हर जगह पे एक इज़्ज़त होती है। मेरा ताल्लुक सब पार्टियों के लीडरान से रहा है, दोस्ती के बुनियाद पे, भाईबंदी के बुनियाद पे, सब मुझे जानते हैं। बाकी रहा सवाल कि लाज़मी है, हर कोई चाहता है कि काम वाला बंदा जो हो मेरे तरफ आ जाए, पर हर किसी की ज़मीर का अपना फ़ैसला होता है। मेरे ज़मीर ने जो फ़ैसला किया और मैं अपने ज़मीर के फ़ैसले पे मुतमिन हूँ। हर सियासी पार्टी को आइन और कानून इजाज़त देता है। आपको यहाँ सियासी पार्टी ने इजाज़त नहीं दी जलसे की। क्या उसमें खौफ ही क्या है?
देखें लाजमी ये चीज़ें होती हैं, एक इंसान में एक जनरल चीज़ होती है। और नई पार्टी अगर कहीं पे आएगी, मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे कोई कपड़े की पुरानी दुकान होती है ना, या होटल कोई होता है पुराना, तो होटल के सामने अगर कोई बर्गर वाला आता है तो होटल वाला उसको बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी दुकानदारी ना ख़राब हो। तो ये आपके सवाल का जवाब है। यानी इसका मतलब है कि सारे वर्कर बच्चे आपके पास आने वाले हैं। बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यूथ की बात कर रहा हूँ। वो यूथ जो शऊर वाली है, जो पढ़ी लिखी है, जिसको पता है सही और गलत का पता है, हक और सच का पता है। पार्टी का नाम भी मजलूम है, और मजलूम सिर्फ इस बेस पे नहीं है कि हमारे साथ किसी ने कोई नाजायज़ किया हो। हम अगर अपने हकूक़ पे महरूम रहे हैं, मिसाल के तौर पे सेहत के इशू हैं, रहने सहने के इशू हैं, वो हमारे राइट्स जो हमारे बेसिक राइट्स हैं अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और उसी राइट्स के बुनियाद पे हम लोग जो है अपने राइट्स मांग रहे हैं। बाकी हम ना स्टेट के ख़िलाफ़ हैं, स्टेट हमारी माँ है, इदारे हमारे हैं, क्योंकि इदारे जब मजबूत होंगे तो हम मजबूत होंगे। अगर इदारे हमारे फेल हो जाएंगे तो हम सब ख़त्म हो जाएंगे। आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और अवामी नेशनल पार्टी, इन सब ने ये कहा था कि ये टिकटॉक वाली पार्टी है। लेकिन इतवार के दिन भी जब आप प्रेस क्लब की तरफ रैली लेकर गए तो लोग बड़े परेशान हो गए थे। ये कहाँ से लोग लेकर आए आप लोग? देखें, टिकटॉक जो है वो एक सोशल सॉफ्टवेयर है जो बाहर से लॉन्च हुआ है। हमने नहीं, हाजी साहब ने या मैंने नहीं बनाया। एक अल्लाह पाक ने एक इंसान को एक ऐसा चेहरा दिया है जिसके चेहरे पे लाखों लोग फिदा हैं, करोड़ों लोग फिदा हैं। अभी लोग तो बोलेंगे, अल्लाह करे उनके भी ऊपर इतनी टिकटॉकें बनेगी, अल्लाह उनको भी लोग लाइक करें, हम तो दुआ कर सकते हैं। बाकी किसी की मशहूर होने से, किसी की इज्जत होने से अगर लोग ऐसी बातें करते हैं तो करते रहे। लोगों को बातें करनी आती हैं और काम करना नहीं आता। हम काम करने आए, खिदमत के जज्बे से आए हैं। बाकी लोगों की बातें वो करते रहे, हमें अपना काम करना है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा था कि मजलूमों की पार्टी है। एक पहले यहाँ भी एक कायद थे, एक लीडर थे जो एक इशारे पे पूरा सीन बंद होता था, वो भी मजलूमी की आवाज़ के बन के आए थे। क्या आप लोग भी उसी तरीके से तो नहीं आएंगे, उसी तरीके से जुल्म और जबर? नाम ले लें तो मैं जवाब दे सकता हूँ। नहीं, नाम तो आपको पता है कि यहाँ पे एक ही भाई तो थे। अच्छा देखें, हर किसी का काम करने का अपना नज़रिया है। वो जिसका आप जिक्र करें वो बिलोंग टू कराची था। जी हाँ। चेयरमैन साहब बिलोंग्स टू कोयटा हैं। 2017 में उनकी पार्टी वहाँ पे रजिस्टर हुई, वहाँ पे उनकी पार्टी वगैरह बनी, और यहाँ भी उनको हमने बुलाया है, सिंध के लोगों ने, कराची के लोगों ने बुलाया है। और जब बुलाया है तो इत्मीनान करके बुलाया है कि आपकी यहाँ पे ज़रूरत है। बाकी हर किसी की सियासत करने का तर्ज अमल अपना होता है। कोई मोहब्बत की सियासत करता है, कोई कलम की सियासत करता है, कोई डंडे की सियासत करता है। हम लोग जो है सियासत का जो तरीका हमारा ये भी है और मोहब्बत का है, इससे लोग जुड़ रहे हैं। तो आपने जो लास्ट सवाल पूछा था कि इतने लोग आते हैं, टिकटॉक्स बनाते हैं, लोग इस वजह से आते हैं कि लोग उसको पसंद करते हैं। वो पसंद बंदा उसको करता है जो मोहब्बत करने वाला इंसान हो, किसी को नुकसान देने वाला इंसान नहीं होता। नहीं, टिकटॉक पे तो आपकी बात सही है। टिकटॉक बाहर के जो है एक लोग जो है उनसे फायदा उठाते हैं, उनसे बकायदा वो लोग पैसे कमाते हैं। हमारे यहाँ पे तो पार्कों में नाचते हैं, गाते हैं, बदतमीजियां करते हैं, तो वो क्या वो लोग आप अपने साथ जो है ना टच कर रहे हो? देखें, हर किसी का अपना एक जाती अमल होता है, वो नाचे गाए कुछ भी करे। बस आपको वोटर चाहिए। नहीं, वोटर की बात नहीं है। अगर देखो, हमें तो उसके अकाउंटों का पता नहीं है ना, कौन सा बंदा आ रहा है, या उसके हम अमल से तो जुड़े हुए नहीं है ना। हाजी की जिम्मेदारी है इसके अमल की, यहाँ मेरी है। बाकी वो नौजवान लड़के हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो उनका जाती अमल है। हमारा या पार्टी का उससे कोई वो नहीं। इमरान खान के पास इतने लोग आते थे तो इमरान खान एक एक को थोड़ी जानता था उस टाइम। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे कि कराची ने बुलाया अजीज साहब को। कुछ लोग कहते हैं कि कराची पे उनको मुसल्लत कर रहे हैं, ऊपर ला रहे हैं, ऊपर से ला रहे हैं, और वो अपना जितना भी उनके पास ब्लैक पैसा वो वाइट कर रहे हैं। स्मगलिंग का पैसा इनके पास, ट्रांसपोर्टर्स के हैं, कुछ और भी बहुत सारे ज्यादा इल्जामात है। उनके हवाले से आप लोग इनके क्या रद्द-ए-अमल है? देखें, लोग तो तनकीद ही करते हैं। हाजी जब सियासत में आया है तो तनकीद शुरू हुई है। पहले तनकीद नहीं थी, पहले हाजी इनके लिए अच्छा था। अभी जब हाजी आया है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में आना चाह रहा है और ख़िदमत करना चाह रहा है, हाजी को ज़रूरत ही नहीं थी। कारोबारी आदमी है, सुकून की ज़िंदगी गुजर रही थी, उसको क्या है आके लोगों एक एक बंदे से मिले, उसका मसला पूछे, उसकी मदद करे।
हमने तो कभी भी पैसों पे लोग नहीं मंगाए अपने जलसों में, जैसे माजी में लोगों ने किए हैं। हमने कभी किसी को नौकरी का झूठा आसरा नहीं दिया जैसे माजी में हुआ है। हमने कभी किसी को झूठे ख्वाब नहीं दिखाए जैसे माजी में हुए। लोग एतमाद कर रहे हैं, आ रहे हैं, हम भी मुखलिसी से चल रहे हैं, वो भी मुखलिसी से चल रहे हैं। अल्लाह पाक मदद करने वाला है इंशाल्लाह। ये जो पौधा लगाया है ये बड़ा दरख्त बनेगा, और इंशाल्लाह दरख्त जब बनेगा तो सब उसकी छाँव में आ जाएंगे। आपने कितने पैसे लिए इनका ये ओहदा कबूल करने? मैंने उनका खुलूस लिया और एतमाद लिया, जो पैसे से भी ज्यादा होता है। वो लोग तो ये कहते हैं कि वो पैसा फेंकता है, उनके पास वर्कर जाते हैं, उनके पास बड़े बड़े सियासी लोग आने को तैयार है उनका पैसा देखने के लिए, उसका पैसा लेने के लिए। तो असल में बात ये है ना, सिंधी में बोलते हैं जो सांप का काटा हुआ होता है ना वो फिर रस्सी से भी डरता है। माजी में ये चीजें सिंध में काफी चीजें हुई हैं, जिसको आप प्ली बार्गेन बोलते हो, जिसको आप हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हो, ये चीजें हुई हैं। तो वो सांप के काटे हुए लोग हैं और फिर रस्सी से डर रहे हैं। अभी तक मजलूम अवामी तहरीक पाकिस्तान ने ऐसा क्या किरदार अदा किया, ऐसे क्या कारनामा है कि आप उन पे फख्र कर सकते हो? देखें, मैं तर्जुमानी करूंगा अपने सूबे की, क्योंकि मैं सूबे का चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ। यहाँ पे मेरी जगह अगर मरकजी सदर होता तो वो आपको जनरली बात बताता। मैं जब से आया हूँ मैं तंजीम साजी में लगा हुआ हूँ, और लोग माशाल्लाह कुछ एक्स MPs हैं जिनके मैं नाम नहीं उठाऊंगा, वो आ चुके हैं। कुछ लियारी से हैं, कुछ डिफेंस से हैं, कुछ मुख्तलिफ इलाकों के जो काउंसलर्स वगैरह थे, चेयरमैन वगैरह थे, वो आ चुके हैं। हम एक माइंड सेट बनाएंगे। हम किसी को झूठा ख्वाब नहीं दिखाएंगे कि हमने आपके लिए ये कर दिया, बस हमने आपके लिए ये अस्पताल बना दिए। नहीं, हम अमली काम, अमली सोच रखने वाले सियासी लोग हैं। नजरिया हो या मंशूर हो, हर पार्टी का तकरीबन सेम है। आप जब पढ़ोगे तो उसमें यही 4-5 पॉइंटें होती है। इम्प्लीमेंट असल चीज़ होती है जो उस पर इम्प्लीमेंट करे, और हम अपने इदारों के साथ मिलके अपने मंशूर पे इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। इंशाल्लाह किसी भी कौम का बंदा हो, सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, 24 घंटे हम उनसे राब्ते में हैं। बाकी लोग जो है आपके पास इज्जत मांगते हैं, काम से नहीं, ज्यादा वैसे इज्जत इस बात मांगते से हैं। तो मैं भी आपके इत्तेफाक करता हूं कि हर कौम के लिए आपके दरवाजे खुले हैं, क्योंकि चंद दिन पहले आप लोग एक लियारी गैंगवार फैमिली से आप लोगों की मुलाकात हुई है, और लियारी गैंगवार ने आप बाकायदा आपकी पार्टी में शमूलियत की, जिस पे सुबह सिंध के पुलिस फहरिस्त तैयार कर रही है बाकायदा आपकी तहरीकें। देखें, लियारी गैंगवार वहाँ के लोगों के ऊपर ये समझो एक धब्बा लगा रहे हैं हमारे काफ़ी दोस्त। आज तक कोर्टों में कोई एक चीज़ भी साबित नहीं हुई जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो उसकी किरदार कुशी कर रहे हैं। अब मुझे आप ये बताओ, आज तक एक भी केस उसके ऊपर साबित नहीं हुआ। सियासत में जब इंसान आता है ना, तो जो पुराने चेहरे होते हैं, पैसे वाले, जो फ्यूडलिज्म सिस्टम पे यकीन रखने वाले लोग हैं, फिर वो किरदार कुशी करते हैं, फिर वो सियासी केसेस बनाते हैं, और फिर वो उसकी किरदार कुशी में ऐसे चले जाते हैं कि उसके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। आज तक कोई भी एक केस उसके ऊपर साबित नहीं हुआ। आपके चेयरमैन का ताल्लुक है बलोचिस्तान चमन से, और जो लियारी गैंगवार इनके साथ ऐसे कैसे रवाबित है, इनको हेलो हाई कैसे कि एकदम उनके घर पे जाएं, चाय बिस्किट का उनकी फैमिली के साथ बैठे, कुछ तो होगा। बात ये थी कि वो एक पॉलिटिकल फैमिली से रहे, एक्स MP रहे, MNA रहे, और गैंगवार खैर मैं नहीं बोलूँगा, ये एक ऑकवर्ड अल्फाज है, और ये सहाफ़त हो या कोई भी चीज़ हो उस पर ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है गैंगवार का लफ्ज़ ना। अगर मैं अपनी सिंध की कौम की तर्जुमानी करूँगा तो कोई ऐसा बंदा होगा वो मुझसे थोड़ा जेलस होगा और फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी होगी। अगर लियारी के मजलूम लोगों की किसी ने तर्जुमानी की, उसका केस लड़ा और वो थोड़ा उसको डिस्टर्ब किया गया, उसके ऊपर केसेस वगैरह लगाए गए, तो फिर इल्ज़ामात लगते हैं। और ये किसके ऊपर नहीं लगे, सबके ऊपर लगे। साबित तो किसी के ऊपर भी नहीं हुआ। इल्ज़ाम लगाने वाला पहले उसको साबित करे। कोर्ट में तो आज तक साबित नहीं हुआ। यहाँ तो हम अपने कोर्ट को फेलियर कर रहे हैं कि कोर्ट हमारी फेल है और हम उसको बोल रहे हैं गैंगवार। यहाँ तो हमारी कोर्ट फेल है अगर हम ये बोल रहे हैं, अगर हम अपने इदारे को फेल कर रहे हैं। देखो, कोर्ट में अगर कोई केस आता है तो वो सारा केस चलता है, उसमें विटनेसेस होते हैं, मशीर होते हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, काफ़ी सारे इदारे उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं।
اگر وہ بندہ جس پہ ایسا الزام لگ رہا ہے، آج بھی وہ بائک پہ اکیلا گھومتا ہے، اگر وہ دشمنی والا بندہ ہوتا، اگر کوئی خراب بندہ ہوتا تو ہمارے ادارے اس کو اٹھا کے لے جاتے، جو بھی ملک کے خلاف ہوگا اس کو اٹھا کے لے کے جاتے، پر وہ تو غریب اکیلا گھومتا ہے، الزام لگانے والے لگاتے ہیں، لگتا اچھا رہتا یہ ہے۔ بتائے کہ آپ لوگوں نے دوبارہ کراچی میں جلسے کرنے کا ارادہ ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ کل جو ہے پاکستان جو متحدہ قومی ملک پاکستان نے بھی ملیر میں جلسہ کیا، تو آپ کو اجازت کیوں نہیں؟ اس پہ آپ لوگوں نے کس کے ساتھ ڈسکشن کیا؟ نہیں ہم نے ابھی فی الحال جلسے کی ڈیٹ خود نہیں دی، کیونکہ ہم تنظیم سازی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ آپ اگر ایک پلاٹ خرید رہے ہو نا تو اس پہ آپ مہمانوں کو نہیں بلا سکتے جب آپ اس کے اوپر بلڈنگ بناؤ۔ الحمدللہ ہمارے تقریباً ڈسٹرکٹ مکمل ہو گئے ہیں، ڈویژن میں مکمل ہونے والی ہے۔ ایک تنظیم سازی جو ہے ہماری، جو ہمارا رائٹ ہے بینگ اے پاکستانی، ہم وہ مکمل کر کے اور پھر ایک خوبصورت جلسہ دیں گے جس میں کوئی یہ تاثر نہ رکھے کہ یہ کوئی پٹھانوں کا جلسہ ہے۔ ہم سب قوموں کو نمائندگی دے رہے ہیں، ہمارے پارٹی میں ہزارہ برادری ہے، ہمارے پارٹی میں تقریباً اردو سپیکنگ دوست ہیں، ہمارے پشتون ہیں، ہمارے سندھی سپیکنگ بہت ہیں، اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے بہت ہیں، اقلیتی برادریوں کو ہم نے اس میں نمائندگیاں دی ہیں۔ تو ہم ایک خوبصورت گلدستہ بنا رہے ہیں، جب گلدستہ بن جائے گا نا تو پھر وہ جلسہ مزہ کرے گا۔ آنے والے عام انتخابات میں مظلوم عوامی تحریک پاکستان بالکل حصہ لے گی، بالکل حصہ لے گی، اور ہم جو ہے ایسے لوگوں کو کھڑا کریں گے جو مخلص لوگ ہوں، جن کو لوگ مانے بھی، اور قومیتوں سے، رنگ و نسل سے ہٹ کے ہم ٹکٹیں دیں گے انشاءاللہ۔ حاجی صاحب کا بھی یہی ویژن ہے، ایسے لوگوں کو آگے لائیں گے جو جیتنے کے بعد اپنے عوام کی، ووٹ دینے والے لوگوں کی صحیح طریقے سے نمائندگی کر سکے اعلیٰ ایوانوں میں، اور ان کے حقوق کے لیے صحیح طریقے سے وہ بات کر سکے اور ان کے حقوق لے کے دے سکے، کیونکہ یہ ہمارا مشن ہے اپنی، اور کوئی ہمارا مشن نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ آغا اسد بابر صاحب، آپ کو چیف آرگنائزر پر آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت دیا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت ناظرین، جیسا کہ ان کی بات میں جو مظلوم اولیسی تحریک ہے وہ کراچی میں انٹر ہو چکے ہیں، اب مزید ہم ان کو آگے دیکھیں گے کہ ان کی کیا کارکردگی ہے، اور ان کے اوپر انشاءاللہ مزید ہم سوال بھی اٹھائیں گے اور ہم ان سے جواب بھی لیں گے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔